Good morning, plus 2 class. This is Varun Goyal with NCERT Maths Class 12 NCERT file. Miscellaneous exercise of chapter number 4 determinant. Miscellaneous exercise intro की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन खास ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं डायरेक्टली, ठीक है. So let us see the first one. Prove that the determinant of this thing is independent of theta. Independent of theta का मतलब ਕੀ है? इथे वो ये कहना चाहता है कि whatever answer you got, थोड़ा जो भी आंसर आऊगा डिटरमिनेंट सॉल्व करके वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थीटा नहीं चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ. सो ठीक है, ਆਪਾਂ डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, देखते हैं थीटा आंदा या नहीं आंदा. ਹੁਣ डिटरमिनेंट सॉल्व ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ रो या किसी भी कॉलम ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है. सो लेट अस एक्सपैंड दिस. देखो इतने में लिख रहे हैं एक्सपैंड बाय R1. R1 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है. सो वो आएगा ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ x इनटू समथिंग माइनस sin थीटा इनटू समथिंग प्लस cos थीटा इनटू समथिंग. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ से बहुत सारे एक्सपैंड ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ. x ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एलिमेंट्स 4 आ रहे हैं माइनस x1 1x एंड sin थीटा के कोरस्पोंडिंग अपने को एलिमेंट्स आ रहे हैं माइनस sin थीटा cos थीटा 1x, ठीक है जी. cos थीटा के कोरस्पोंडिंग अपने को एलिमेंट्स आ रहे हैं आवर चार माइनस sin थीटा cos थीटा, आफ्टरवर्ड्स माइनस x एंड 1. इस बार क्लियर है. उस तो बाद हम की करेंगे सॉल्व करते हैं x into x minus x square minus 1 into x minus sin थीटा. इथे अपने को क्या आएगा minus x sin थीटा minus cos थीटा. इथे अपने को क्या आएगा cos थीटा into minus sin थीटा plus x cos थीटा, ठीक है जी. उस तो बाद देखो x को अपन अंदर ऑपरेट कर देंगे, ये आएगा तो माइनस x क्यूब माइनस x माइनस sin थीटा अंदर ऑपरेट करेंगे तो प्लस x sin स्क्वायर थीटा आएगा. इथे अपन इन्हें इथे ऑपरेट करेंगे प्लस sin थीटा cos थीटा. इथे तो क्लियर है, sin थीटा cos थीटा आ गया. हम इथे ऑपरेट करो माइनस sin थीटा cos थीटा. उस तो बाद इन्हें इथे ऑपरेट करोगे तो आएगा x cos स्क्वायर थीटा. आ दो टर्म्स कैंसिल हो गई अपने को. इथे देखो माइनस x क्यूब एज इट इज माइनस x भी अपने को एज इट इज x sin स्क्वायर थीटा x cos स्क्वायर थीटा. x इनमें जो मैं कॉमन रख रहे हैं तो इन बिटवीन रहेगा बिल्कुल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. तो एदी वैल्यू होंगी कि नहीं अपने को, एदी वैल्यू होंगी अपने को 1. तो अपने को रिजल्ट आएगा माइनस x क्यूब माइनस x प्लस x, ठीक है जी. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1. ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ. ਸੋ ਹੇਅਰ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਓਵਰ. ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ. So as you can see the second statement, without expanding determinant prove that this determinant is equal to next one. Okay, prove ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਦੇਖੋ prove ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ. ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ABC a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ c ਸਕੁਅਰ. ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ c ਸਕੁਅਰ, ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ a ਕਿਊਬ b ਕਿਊਬ c ਕਿਊਬ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਟਰਮਸ ਦਾ ਕਿਊਬ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ. ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ. ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ a ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਇੱਥੇ b ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਇੱਥੇ c ਮਿਸਿੰਗ ਆ. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ a ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰ, ਇਹਨੂੰ b ਨਾਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ c ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ abc abc abc. ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗਾ ਕਾਮਨ ਆਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ. ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ. ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਲਓ r1 a r1 r2 b r2 r3 C R3, ठीक है. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਵੀ ਆਣਗੇ, ठीक है. सो अपने को आएगा 1 बाई
ए बी सी, इतने आपके को आएगा ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। इतों तक क्लीयर हो गया। अपने को चीज बन गई ए बी सी ए बी सी ए बी सी कॉमन कटा के आउटसाइड कटी जानी है आगे, तो अपने को की रह जाएगा इतने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। बट हले भी अपन की चाहिए वा ए दी जगह पे ए अपन इतने चाहिए वा तो ए अपन इतने चाहिए। मतलब आप की करेंगे, देखो पहला तो करेंगे C2 चेंज करांगे अपन C3 ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है जी। C2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ C3 ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਵਾ, C1 ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ C2 ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਨਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਟ ਵਿਲ ਬਿਕਮਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 1 1 1 a square b square c square a cube b cube c cube। this will give us a required result। जो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਮੂਵ ਔਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ। Let us move on fourth question। If ABC are real numbers and this determinant is equal to 0, अपन ने equal to 0 given a determinant, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਜੋ a plus ਜਾਂ ਤਾਂ a plus b plus c 0 ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਮਸ ਕੀ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थर्ड क्वेश्चन सिंपल एक्सपैंड करना ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैं नहीं कर रहा, वो तुसी खुद ट्राई करोगे। लेट अस सी द फोर्थ वन एंड इट्स सॉल्यूशन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ b plus c c plus a plus b, दो बार a आ रही है दो बार c आ रही है दो बार b आ रही है, तो ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ दो बार a है दो बार b है ਤੇ दो बार c आ रही है। सिमिलरली उधर 2a 2b ਤੇ 2c आ रही है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ऑपरेशन लगेगी ये R1 ठीक है जी। तो अपने को फैक्टर जो बनेगा दैट फैक्टर इज ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। ठीक है जी। तो उस तो बाद जो नीचे है अपने को c प्लस a प्लस b b प्लस c प्लस a b प्लस c, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ अपने को a प्लस b। सो वो बाकी ਦੇ फैक्टर्स उधर ही लिखांगे अपन। आफ्टरवर्ड्स ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c कॉमन आ रहे हैं, सो उनमें कॉमन लिख लेना है ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, इट विल बी कॉमन आउट। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕॉमन ਆउਟ ਲਿਖਾਂਗੇ मैं ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ इस स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो जो मैं ਇਹਨੂੰ कॉमन ਕੱਢੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 1 1 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, इतने आएगा 1 1 1, इतने आएगा बिल्कुल ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। आ चीज क्लियर। उस तो बाद ऑपरेशन ਤੁਹਾਨੂੰ दिख रही है कि की लगानी है, पर जीरोस बना लेने हैं बाद तो बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो आप ऑपरेशन की लगावांगे c1 माइनस c2 कर देंगे। ठीक है जी। एंड c2 माइनस c3 कर देंगे। ये दो ऑपरेशंस लगाने तो बाद जो अपने को रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स की होगी, तो देखो 1 माइनस 1 इतने हो गया 0। उस तो बाद c प्लस a माइनस b, तो c माइनस b आ जाएगा क्योंकि a नाल इनका कैंसिल हो जानी है ना। a प्लस b माइनस c, तो इतने आएगा अपने को a माइनस c। आफ्टरवर्ड्स उस तो बाद आप इतने आ जाओ 1 माइनस 1 इट विल बी 0 है। उस तो बाद a प्लस b माइनस c, a माइनस c आएगा, b प्लस c माइनस c, b माइनस a। आफ्टरवर्ड्स 1 b प्लस c एंड c प्लस a। इतना क्लियर है। वो जो एक फैक्टर आप कॉमन कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, वो अपने को ला रही है बेटा। अपन डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 दिता होया वा, ਇਹਦਾ मतलब जो डिटरमिनेंट 0 आ जाता आ 0 होगा।
या फिर अपने को जो डिटरमिनेंट है A0 होगा। तो हम अपन नेक्स्ट स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, this implies a plus b plus c is equals to 0। या तो A0 हो गया, इतना क्लियर है ना। दो चीज़ों की प्रोडक्ट है ये इक्वल टू 0 आ, दो चीज़ें की प्रोडक्ट 0 कदों होंगी है, या तो पहली 0 हो या दूसरी 0 हो, या फिर दोनों 0 होना अपने को, यही चीज़ होंगी है ना। सो दैट्स वाई आप इतने इतना लिखांगे a plus b plus c 0। एक चीज़ प्रूव हो गई अपनी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ R1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਐਕਸਪੈਂਡ ਬਾਈ R1। R1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ c minus b, a minus c, a minus c, b minus a। These factors we will get here। इत्थे आपको आ वाले फैक्टर्स मिल रहे हैं जो आप इत्थे लिख रहे हैं, ठीक है। सो इथों जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक वंस, एक बार आप दोबारा चेक कर लेंगे भी इत्थे अपने कोले c minus b है, b minus a आना सी, चेक कर लेंगे आप इथों b plus c minus a minus a। हाँ ठीक है, यही फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। हुण इहनूं जो सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट नूं तो ये की बनेगा अपने को, क्या आएगा अपने को c minus b, b minus a minus of a minus c's whole square इक्वल टू की रखा है ਆਪਾਂ 0, ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਯੂ ਆਲ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫੈਕਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ c minus b, b minus a minus a minus c's whole square equal to 0। यही चीज़ है ना अपने को। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਆਏਗਾ bc, ठीक है, माइनस ac माइनस b स्क्वायर प्लस ab। इतने आएगा अपने को माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस प्लस 2ac इक्वल टू 0। इतने आ चीज आ जाएगी अपने को। अपने को a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तीनों नेगेटिव आ रहे हैं। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ नेगेटिव साइन कॉमन कर लेना है। वैसे ਇਹਨੂੰ ओपन ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, क्योंकि तो डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता है। चलो देखते हैं, हम इतने माइनस कॉमन कटा तो अपने को बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है जी। देखो प्लस 2ac माइनस ac प्लस bc प्लस ab। जस्ट अ मिनट वेट हियर, मुझे लगता है साइन चेंज नहीं किए, साइन चेंज करनी थी, ठीक है। माइनस कॉमन कटन तो बाद अब 2ac प्लस का सी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2ac प्लस का ac, ठीक है जी। माइनस का ab हो जाएगा अपने को इतने, एंड माइनस का ही अपने को की होएगा bc इक्वल टू की हो गया 0। माइनस कॉमन कटिया, एडजस्ट करता। हुण उस तो बाद देखो इनु 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो सारे ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस, देखो आ 2ac माइनस आ प्लस आता है, इतने कितना रह जाएगा अपना माइनस है, ac रहना सी तो 2ac आएगा बिल्कुल कल्ला माइनस रहता है, ठीक है। माइनस 2ab माइनस 2bc इज इक्वल टू 0। इतने तक क्लियर हो गया बेटा, इतने तक आप इन्हें चेंज कर लिया। चेंज करने तो बाद तो देखो इन्हें मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, उस तो बाद प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। ध्यान नाल देखो मैं कितना की है, एक a स्क्वायर चक्या वा, एक b स्क्वायर चक्या सी, इत्थे लिख रहा है, ठीक है। अगली a स्क्वायर मैं इत्थे लिख ली, अगली b स्क्वायर मैं उत्थे लिखती, एक c स्क्वायर इत्थे, एक c स्क्वायर इत्थे है। आ तीन दे तीन वेक्टर उदों ही अपने को। सो ये बन जाएगा अपने को a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। तो बेटा तुम देख सकते हो
जो अपने को टर्म्स आईਆਂ ने ये सारियां टर्म्स की ने ये नॉन नेगेटिव टर्म्स ने क्योंकि अपन पता वा भी स्केयर किसी भी चीज़ का नेगेटिव नहीं होता नेगेटिव नहीं होता तो मतलब इन्होंने आपस में कैंसिल नहीं होना ये टर्म्स ऐड ही होंगी सिंपल सो ऐड होके भी आंसर जीरो दे रही है ਇਹਦਾ मतलब है कल्ली कल्ली टर्म जीरो के इक्वल होगी a माइनस b जीरो हो सकता है स्क्वायर लगा लो b माइनस c भी जीरो हो सकता है एंड c माइनस a का स्क्वायर भी कितने इक्वल हो सकता है जीरो के इथों आपने को किया आएगा a is equals to b is equal to c so this result and this question is to be completed here let us see the next one next question करते हैं देखते हैं उसमें अपने को की बना क्वेश्चन नंबर 5 ਤੇ 6 ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮੈਂਟ ਮੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਲਸੋ let us move on the seventh question भी easy है if a inverse is equal to this one and b is equal to that one दो मैट्रिसेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ a inverse ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ b ਦਿੱਤਾ ਹੈ फाइंड ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ab ਦਾ ਇਨਵਰਸ ab ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ab ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸਲ ਲਾਅ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਇਨਵਰਸ a इनवर्स ये ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ab ਦਾ ਇਨਵਰਸ b ਇਨਵਰਸ a ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਆ ਜੋ a ਇਨਵਰਸ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਿਰਫ b ਇਨਵਰਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ b ਇਨਵਰਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ adjoint of that matrix ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ b ਇਨਵਰਸ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਣਾ ਸੀ 1 by determinant of b into adjoint of b ਇੱਥੇ ਵੀ b ਕਰ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ b ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ b ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ a ਇਨਵਰਸ ਵਾਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਸੀ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਲੈਟ a is equals to ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ a ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾ ਵੀ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ a ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਣੀ ਬਣੂਗੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ a ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ a ਇਨਵਰਸ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਬਟ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a ਗਿਵਨ ਆ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ a ਇਨਵਰਸ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ a ਇਨਵਰਸ ਆਊਗਾ ਕੀ ਤੇ a ਇਨਵਰਸ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ a ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ so determinant of matrix A is कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं 15 माइनस 1 14 ऐसे 14 आ जाएगा इतने देखो माइनस 10 माइनस 1 कितना हो गया माइनस 11 इंटू 2 माइनस 22 इतने आएगा माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इंटू 1 पॉजिटिव 5 14 प्लस 5 इट विल बी 19 माइनस 22 एंड आंसर इज माइनस 3 सो डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया ਇਹਦਾ मतलब इनवर्स अपना एग्जिस्ट करूंगा सो ਆਪਾਂ a इनवर्स ਵੱਲ चलते हैं ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा कोफैक्टर्स ऑफ b कोफैक्टर्स ऑफ a ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖੋ कोफैक्टर्स लिखते कोफैक्टर्स लिखण तो बाद डायरेक्टली लिखते क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ कोफैक्टर्स ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ डायरेक्टली ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ
एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स वो की आएगी देखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 14 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 11 -5, afterwards 11 4 -3, afterwards -5 -3 -1। so ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ, this one is the adjoint of A matrix। now afterwards A inverse is equals to what? A inverse is equals to 1 by determinant of A into what? Into adjoint। adjoint matrix is 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। let us check our answer। we will check our answer here। हाँ जी आंसर में चलो जी एक डिफरेंस आप आई थिंक सो कितने मिस्टेक की है डिटरमिनेंट सॉल्व करने च दैट इज 13 अकॉर्डिंग टू मी। सो देखते हैं आपने कि 5 प्रॉब्लम आई है इथे। हाँ देखो ये वाला जो नंबर सी अपने को लास्ट वाला 1 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में -2 3 1 1, ठीक है। -2 -3 -5 हो गए थे आउटसाइड इथे आप माइनस का मान लगाइए दैट इज अ +1 एक्चुअली। सो इथे अपने को कितना आएगा, इतने अपने को साइन ऑफ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है जी। सो वो नेगेटिव होने करके अपने को कितना हो गया, इट विल बी अ -30 नॉट -3, यू जस्ट चेंज हियर -30। ਹੁਣ देखो ये जो थोड़े को A इनवर्स आ चुका, दिस इज योर A इनवर्स, ठीक है। ये जो भी थोड़े को A इनवर्स आया हुआ A इनवर्स का हम तुसी अग्गेों की फाइंड करना वा लेफ्ट हैंड साइड देखो ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਐਡਜॉइंਟ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਐਡਜॉइंट ਲੱਭਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਆਲ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋ -1/30 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ A ਇਨਵਰਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਵੀ ਐਡਜॉइंट ਆਫ A। ਦੇਖੋ ਐਡਜॉइंट ਆਫ A ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ए वाली मैट्रिक्स का हम अगे फर्दर जी इक्वेशन नंबर 2 है ਇਹਦਾ इनवर्स फाइंड करोगे, मतलब ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਫੈक्टर्स फाइंड करोगे, कोफैक्टर ਕੱਢ ਕੇ एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ B। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ B मैट्रिक्स ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਨवर्स ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ A ਇਨवर्स, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ C, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ C। ਤੇ ਜਿਹੜੀ C ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਐਡਜॉइंट फाइंड करना दोबारा। सो वो काम ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਵਰਕ ਆ। सो here your question number 8 is also completed। now let us move on the next one। see the statement of ninth question। ninth question ਦੀ statement ਦੇਖੋ x y x plus y y x plus y x whatever statement is there। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। R1 ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿਓ, R1 + R2 + R3। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਵਾਈਸ ਆਫ x + y ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜੂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਚੂਗਾ 1 1 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 1 ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, 1 1 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ। 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਯੂਰ ਆਨਸਰ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 11 ਚ ਕੀ ਆ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਲਫਾ ਸਕੁਅਰ ਬੀਟਾ ਸਕੁਅਰ ਗਾਮਾ ਸਕੁਅਰ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਗਾਮਾ ਅਲਫਾ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਮਾਈਨਸ ਗਾਮਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਾਮਾ ਮਾਈਨਸ अल्फा भी चाहिए। तो तुम ऑपरेशन लगाओगे R1 के उपर R1 माइनस R2, फिर लगाओगे R2 के उपर ऑपरेशन R2 माइनस R3। 2 ऑपरेशन लगाने तो बाद थोड़े को कॉमन फैक्टर जो निकलणगे वो करके उस तो बाद इन्हें एक्सपेंड कर दो, यू विल गेट योर आंसर। सिमिलरली फॉर द 12th क्वेश्चन लैट मी राइट सम ऑपरेशंस मैं कुछ लिख दिना वा ताकि थोड़ा इन्होंने क्वेश्चन का आइडिया लग जाए। 9th क्वेश्चन के लिए R1 + R2 + R3
10th क्वेश्चन में की करोगे R1 माइनस R2 माइनस R3, ठीक है जी। आफ्टरवर्ड्स दीज क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ सेम है R1 माइनस R2 माइनस R3, ठीक है। ਇਹਦੇ ਲਈ भी सेम है R1 माइनस R2 माइनस R3, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं अपन R2 माइनस R3। ऑपरेशंस ऑलमोस्ट सारे ਦੇ ਵਿੱਚ सेम है। क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, सो मैं डायरेक्टली लिखते इतों तक के क्वेश्चंस ਤੁਸੀਂ खुद ट्राई करोगे। I will just give you hints of these questions only, okay? So now let us move on the next 13th क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट अपने सामने है 3a माइनस a प्लस b माइनस a प्लस b। आई थिंक स्टेटमेंट में सही लिखी, जस्ट लेट मी चेक द स्टेटमेंट। इथे c आएगा, बाय मिस्टेक है राइट हियर। ओके, सो ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 3 ਹੈ, 3a ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਉੱਪਰੋਂ, ਚਾਹੇ ਇਦਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਦਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ R1 ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਨੰਬਰ ਫॉर R1 ऑपरेशन लगा रहे हैं ਆਪਾਂ R1 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ R1 plus R2 plus R3। ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c। rest of the entries are same here। इस तो बाद नेक्स्ट स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, a plus b plus c ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਕਾਮਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 1 1 1 a plus b plus c, ये अपने को कॉमन आ गया। 1 1 1 ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, तो ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ c1 ਦੇ ਉੱਪਰ c1 c2, फिर c2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ c2 c3। तो देखो ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी, आई राइट हियर a plus b plus c आल्सो 1 minus 1 0 minus b plus a minus 3b minus 4b plus a minus c minus b plus c। तो a कितना हो जाएगा a minus b plus 2c। इतने ऑपरेशन लगा दो, इट विल बी 0 3b plus b 4b माइनस सी। इतने ही होगा अपने को, इतने अपने को कितना आ जाएगा, इट विल बी b minus 4c, ठीक है जी। इतने आएगा अपने को 1 c minus b 3c। इतना क्लियर। आफ्टरवर्ड्स कुछ कॉमन का निकल ही गया ना, डायरेक्टली R1 को एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R1 ਦੇ ਨਾਲ एक्सपेंड करूंगी। उस तो बाद वाले कैलकुलेशन वर्क ਤੁਸੀਂ खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हो, इन्हों देख के क्लीयर कुछ होंदा भी या नहीं भी होंदा, दोनों जी चीज़ां ने, मतलब इन्ना औखा भी नहीं है जी आप कहिए कि टफ क्वेश्चन है, नॉट अ टफ क्वेश्चन। सो आप की करते हैं, आप एक ये जो फस्ट कॉलम है ना वो उपर फोकस करते हैं, उत्थे आप एलीमेंट्स को 0 बनाओ तो इनू एक्सपेंड कर दो, कुछ ना कुछ तो अपने आप चेंज होगा क्वेश्चन के। सो देखते हैं आप, क्योंकि हम ऑपरेशंस रो के लगानियां पैणगियां, ये भी याद रखियो। रीजन की है, कॉलम जो कॉलम है ना उन्होंने आपस में कुछ भी नहीं मैच करता, एक दे विच कल्ले कॉन्स्टेंट, एक च कल्ली पी वेरीएबल, एक च पी ते क्या दोनों वेरीएबल्स हैं। सो जो आप रो वाइज ऑपरेशन लगावांगे, इट कुड बी ईजी फॉर अस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट बेटा, लेट मी अटेंड। सो आप की करते हैं, रोज के ऑपरेशन लगा के कुछ जो जीरोज बनता उन्होंने आप ट्राई करते हैं भी जीरोज किमें बनाना, ठीक है। तो देखो मैंने दिख रहा वा R2 माइनस 2 टाइम्स R1 कर देने, R3 माइनस 3 टाइम्स R1 कर देने। जो चेंजेस आ गए वो देख रहे हो, इतने आएगा 1 0 0, ये क्लियर हो गया ना। पर 1 0 0 इतने देखते हैं आप R2 3 plus 2p माइनस 2 minus 2p। देखो 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 2
2p चो इतने 2p है 2p से 2p माइनस करेंगे तो 1 ही रह गया है ना। सो इतने आई थिंक आई राइट हियर 1 जस्ट अ मिनट बेटा and due to some other reasons I have to be late for this. Okay, 1 plus p plus q, this is as it is. इतने तुसी की लिखोगे, इतने देखो 3 minus 2 it will be 1, 2p minus 2p तो 0 हो गया अपने को। इतने आ जाएंगे अपन 4 minus 2, देखो अपन डिवाइस की तरह तब 4 minus 2 it will be 2, 3p minus 2p it will be p, 2q minus 2q it will be 0, तो 2 plus p रह गया अपन को। नेक्स्ट अपन इतने आ जाएंगे 6 minus 3 it will be 3, 3p minus 3p it will be 0, 10 minus 3 it will be 7, afterwards 6p minus 3p it will be 3p, 3q minus 3q it will be 0। सो अपने को आ दो ऑपरेशन लगाने तो बाद ये वाली मैट्रिसेस बचती है, ਇਹਦੇ थ्रू कर दो इन्हें एक्सपेंड करोगे तो आपको 1 ਦੇ थ्रू ਕੀ आएगा 1 3 2 plus p 7 plus 3। सो इन्हें कर दो एक्सपेंड, कैलकुलेशन सॉल्व कर दो, यू विल गेट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट। सी द स्टेटमेंट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट अपने को जो गिवन दी हुई है, देखो लास्ट स्टेप की है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा। लास्ट कॉलम अपने को यही है ना, तो एक कॉलम के ऊपर आप प्रॉपर्टीज लगावांगे। प्रॉपर्टीज की है कॉस ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कुछ इदा दी। तो वो प्रॉपर्टियां लगाने तो बाद हुण आपां करना की है, ये बेटा एक ही ऑपरेशन है इस क्वेश्चन की, दैट इज C3। C3 नूं चेंज करना वा C3 प्लस साइन डेल्टा टाइम्स C1 माइनस कॉस डेल्टा टाइम्स C2। इन्ना काम करने तो बाद थोड़ा जो थर्ड कॉलम आ उन्हें की बन जाना वा, तीनों एलिमेंट्स ने बन जाना 0। जो तीनों एलिमेंट 0 बन गए तो डिटर्मिनेंट का आंसर भी कितना आएगा, इट विल बी 0 ऑल्सो। सो हियर योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। This is your 17th question. As you can see here 17th question जो मैं क्या हुआ ABC AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, मतलब ये जो तीन टर्म्स AP ਦੇ ਵਿੱਚ पहली दो टर्म्स ਦਾ कॉमन डिफरेंस, अगली दो टर्म्स ਦਾ कॉमन डिफरेंस इक्वल ਹੁੰਦਾ ਵਾ। इथों अपने को की आ गया 2b is equal to a plus c, मतलब आ 2b में a ਤੇ c के टर्म्स ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने तो बाद जो मैट्रिक्स में को बनेगी वो मैट्रिक्स आएगी x plus 2 x plus 3 x plus 4, afterwards x plus 3 x plus 4 x plus 5 x plus 2a x plus a plus c x plus 2c। सो ये आ जाएगी अपने को रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आफ्टर एडिंग दीज टर्म्स। मैं तुहानू बार बार दस रहा बेटा भी आप AP सीरीज के अकॉर्डिंग इनू आप इदा लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो AP सीरीज के अकॉर्डिंग इदा लिखने तो बाद हम ऑपरेशन लगानी है R1 के ऊपर, R1 माइनस R2, उस तो बाद ऑपरेशन लगानी है R3 के ऊपर, R3 माइनस R1, ठीक है जी। ये दो ऑपरेशन ने तुसी अप्लाई करोगे, दोनों ऑपरेशंस अप्लाई करोगे तो R1 माइनस R2 करोगे तो क्या आएगा, देखो इट विल बी -1, इथे कितना आएगा -1, इथे कितना आएगा अपने को देखो x नाल x कैंसिल होगी 2a माइनस a माइनस c, ठीक है जी। आफ्टरवर्ड्स x प्लस 3 x प्लस 4 एंड x प्लस a प्लस c, ये एज इट इज में हुन आप R1 माइनस R3 कर रहे हैं। चेंजिंग को आप एक्चुअली यूज नहीं कर सकते थे, R2 कर लेने हैं। तो इथे देखो इथे आएगा अपने को 1, इथे भी 1 आएगा, इथे देखो x नाल x कैंसिल होएगा 2c माइनस a माइनस c, मतलब इथे आएगा अपने को c माइनस a। क्लियर। हुन थोड़ी लास्ट ऑपरेशन है R1 के ऊपर, वो हैगी है R1 प्लस R2 ओ सॉरी R3। जब R1 प्लस R3 करोगे ना, R1 प्लस R3 करोगे आ भी 0 आ भी 0 वो भी 0, एक रो पूरी 0 बन गई। सो आंसर इज 0। सो आंसर आएगा अपने को लेते 0। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन जो कि MCQs ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ A ਇਨਵਰਸ फाइंड करना। A ਇਨਵਰਸ फाइंड ਕਰਨ ਦਾ क्राइटेरिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ भी फस्ट ऑफ ऑल आप की करेंगे चेक करेंगे भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है या नहीं।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕੋਫੈਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। 19th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੂਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਨਸਰ टिक कर दोगे, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व दीज लास्ट 2 क्वेश्चंस बाय MCQs, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। आई होप सो यू लाइक माय वीडियो।